Welcome everybody to this new lecture of our new paper, Waves, Oscillation and Acoustics. So today we will continue our discussion over simple harmonic oscillator, and in our previous lecture we were discussing about the differential equation and the solution of that differential equation, the different solution of that differential equation as we obtained in last or previous lecture. On continuing this discussion, let us discuss about the velocity of simple harmonic oscillator. Okay, what is the velocity of simple harmonic oscillator? That is an oscillator which perform simple harmonic oscillations. Okay, that. So let us discuss about the velocity of simple harmonic oscillation. We know that although we have a different solution, different type of solution of differential equation number first, as we derived in our previous lecture, but still we have used this particular solution for the as the solution of that differential equation, and we probably use this for our next considerations, that velocity and about acceleration of harmonic oscillations. So this is the solution of that differential equation number first, as we discussed earlier. So the displacement of a simple harmonic oscillator at an instant t is given by y is equals to a sine omega t plus phi. This is equation number A. Say this is equation number A. So velocity, what is velocity? Velocity is the time rate change of displacement or time derivative of displacement, and this equation number A gives us the displacement of that particular simple harmonic oscillator. So when we differentiate this equation number A with respect to t, we can get the velocity of that particular harmonic oscillator. So on differentiating this equation number A with respect to t, that is with respect to time, we can get the velocity of that harmonic oscillator. So d by dt of y and d by dt, the value of y is a sine omega t plus phi, and on putting the value here, so d by dt of a sine omega t plus phi, because a, the amplitude, the peak amplitude of the oscillation of the wave is constant, so it is constant, and d by dt actually of this function sine omega t plus phi. On differentiating this function, because sine theta gives you d by d theta of sine theta gives you cos theta, in the same manner d by dt of sine omega t plus phi gives you cos omega t plus phi, and differentiating of d by dt of omega t plus phi gives you another omega. So actually the velocity which is given by dy by dt is equals to a omega cos omega t plus phi, and which can be written as a omega sine omega t plus phi plus pi by 2, because cos can be written as theta pi by 2 plus theta. So pi by 2, and this function is in place of theta. Say this is equation number B. Now moving towards the next one, as you can say from the last equation that sine omega t plus phi is y over a from this equation. This y is equals to a sine omega t plus phi, the equation number A. Okay, we have this. We have sine omega t plus phi is equals to y by a. Okay, now what is the value of cos omega t plus phi? Now using the relation cos theta is equals to root 1 minus sine square theta, because 1 minus sine square theta gives you cos square theta, and square is cancelled with the square root, so you can get cos theta. So cos omega t plus phi can be written as 1 minus root 1 minus sine square omega t plus phi.
and the value of sine omega t plus phi from here is y by a. So put here the value of sine omega t plus phi, and the value is y by a. So because here is the squared of sine function, so you can get here root 1 minus y square over a square, and on multiplying by 1, it is, this function is converted into a square minus y square over a square, and because of the denominator square, this term can be written as root a square minus y square over small a, because into the denominator the square root is cancelled with square of that amplitude, this. So velocity v can be written as omega root a square minus y square. This is equation number 8. Why we can write, how we can write this equation as omega into root 1 minus a square y square? Because look at here, because the velocity of harmonic oscillator is equals to a omega cos omega t plus phi. A omega cos omega t plus, and cos omega t plus phi has value this. Cos omega t plus phi has value this. So on putting this value into equation number B, we can write the velocity of harmonic oscillator is equals to omega root a square minus y square. This is equation number 8. Okay. Now talking about the maximum velocity. What is the maximum velocity by which the harmonic oscillator can oscillate? Is equals to the velocity of the oscillator is maximum when sine omega t plus phi by 2 should be equals to 1. क्योंकि जो साइन थीटा की आप वैल्यू कंसीडर करते हैं, आपको ये पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, चाहे साइन के एंगल में कुछ भी हो, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी साइन के एंगल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो साइन वेरी करता है वो दो ही वैल्यूज के बीच में वेरी करता है, +1 एंड -1। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के इस फंक्शन से हम मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो साइन की वैल्यू है वो भी हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। ये वाला वो फंक्शन है, ये वाली वो इक्वेशन है जिससे हम साइन की मैक्सिमम वेलोसिटी की, हम इस इक्वेशन से मैक्सिमम वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर बी से मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की बात करें। तो वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब राइट हैंड साइड में इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन के एंगल में चाहे कुछ भी हो, साइन के एंगल पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस साइन थीटा एनी वट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा, it is always gives the maximum value +1 and minimum value -1. That's so the maximum value of this quantity sine of theta, whatever the value of theta, is +1. So velocity is maximum then. And if this function, that is sine of theta, has minimum value because it has minimum value of -1. So if we put here the value -1, so the velocity is minimum then. That is the minimum value of velocity is -a omega. Minimum value of velocity is -a omega. So this. So because we talking here about the maximum velocity, so maximum velocity can get when this term has value +1. This. So V max is equals to a omega because their sine term has value +1. V max equals to V when y is equals to 0 according to equation number 8. Okay. V max की वैल्यू a ओमेगा के इक्वल्स जब होगी जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, उसका 0 हो। दैट इज द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन इट्स मीन पोजीशन। जब वो अपनी मीन पोजीशन में हो तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये इक्वेशन हमें ये बता रही। देखिए V max इक्वल्स टू V
कब होगा, क्योंकि वी मैक्स की इक्वल्स टू है, वी मैक्स की जो वैल्यू है, वी जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वो ए ओमेगा के इक्वल है। और ये इक्वेशन जो इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू कब दे सकती है, या फिर ये वैल्यू ए ओमेगा कब दे सकती है। अब आप यहाँ देखिए इसकी राइट हैंड साइड में, यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड में एक वैल्यू है ओमेगा और रूट में है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं y को यहाँ 0 पुट कर दूं तो रूट में बचेगा केवल ए स्क्वायर, और इस स्क्वायर से इसका रूट हो जाएगा कैंसिल, यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा के इक्वल। तो ये जो वैल्यू है वी मैक्स, ये भी ओमेगा है, और जो वैल्यू वेलोसिटी की यहाँ से इस कंडीशन के साथ आएगी कि y की वैल्यू 0 हो। किस कंडीशन के साथ, कि यहाँ इस इक्वेशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, जब उसको अपनी मीन पोजीशन में हो। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के इक्वल तभी हो सकती है जब y इक्वल टू 0 हो, और y इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे या रेस्ट की पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ओके, सो कंपेयरिंग इक्वेशन A and B, we can find that velocity of the simple harmonic oscillator at an instant t leads the displacement by phase difference of pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। इन इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें, दिस इज इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B, तो आप ये पाएंगे कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिस्प्लेसमेंट को, और ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर B जिसको हमने नाम दिया है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी को। अब आप ये डिफरेंस देखिए कि y लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो y जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी जो v जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड में आप ये देखें, साइन के एंगल में यहाँ ओमेगा टी प्लस 5 है, और यहाँ साइन के एंगल में ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। तो ये जो प्लस पाई बाई 2 है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी है किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो उसके डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 फेज में ज्यादा है, या लीड्स बाय द फेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, और यू कैन से इट एज 90 डिग्री। तो हिंदी में अगर हम इस बात को समझना चाहें तो आप कहेंगे कि जो विस्थापन और वेलोसिटी के फेज डिफरेंस यानी कला की बात करें, तो जो वेग है किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो उसके विस्थापन से पाई बाई 2 अग्रगामी है, यानी पाई बाई 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री से अग्रगामी है। इस तरह से हम इस बात को हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं, तो इस वजह से हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं। अग्रगामी पश्चगामी होने का मतलब, ये कला में डिफरेंसेस आप आई होप अपने 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं स्टडी करके जरूर आए होंगे। सो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ एंगल को अगर आप देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल है वो ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है उसमें जो साइन का एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसमें जो एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। ये जो प्लस पाई बाई 2 ये इंडिकेट करता है कि जो वेलोसिटी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा, जो विस्थापन है उसकी अपेक्षा कला में फेज में अग्रगामी है, प्लस पाई बाई 2। ओके, अब बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन के ऊपर, एक्सीलरेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो acceleration of harmonic oscillator. So we have velocity of harmonic oscillator is given by this equation, v is equals to a omega cos omega t plus phi. Now differentiating this equation with respect to t, क्योंकि ये velocity है और velocity का जो time derivative है या time rate change of velocity gives you the acceleration of that particular harmonic oscillator. So v is equals to a omega cos omega t plus phi. This is the equation number 9. Now differentiating this equation with respect to t, we have dv by dt is equals to minus a omega square sin omega t plus phi. This differentiating this equation with respect to t,
A omega are constant, so coming out of the, you can say it as operator, dy dt of cos omega t, because dy d theta of cos theta gives you minus sin theta, that's why this minus sign is coming here. And d by dt of cos omega t gives you sin omega t plus phi, and also d by dt of this function omega t plus phi gives you another omega, that's why here is omega square. So actually dv by dt of this equation number 9 gives you minus a omega square sin omega t plus phi, this. Okay, and this is also the the time rate change of velocity gives you the acceleration of that particular harmonic oscillator. So it is equals to minus, this can be written as acceleration, you can say it, because हम magnitude में अभी deal कर रहे हैं तो हम चूंकि acceleration, चूंकि A और A से confuse हो जाएंगे, amplitude को हम A से denote कर रहे हैं और जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको भी हम ए से ही डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये अलग से, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। वैसे तो अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा होता तो ये आप समझ जाते कि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ हमारी डीलिंग हो रही है तो हम यहाँ वेक्टर नोटेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। सो the acceleration of harmonic oscillator is equals to minus a omega square sin omega t plus phi, and this can be written as a omega square sin omega t plus phi plus pi. This minus sign is absorbed by this pi, because this is sin theta pi plus theta is minus sin theta. So this is equation number 10. Now talking about the maximum acceleration, ओके, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब फिर से साइन की ये वाली जो वैल्यू है, ये जो एंगल है पूरा का पूरा, साइन के एंगल पे ध्यान देना ही नहीं है। जब भी आप मैक्सिमम, कोई भी फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है और राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसमें साइन लिखा है, तो आप वट एवर द एंगल ऑफ साइन, आप वहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको +1 कंसिडर कर सकते हैं और जो मिनिमम वैल्यू है उसको -1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 10 है, अगर हमें यहाँ से इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है +1। सो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा इज इक्वल्स टू, ये फिर से चलो यहाँ तो नोटेशन में अंतर आ गया, ए मैक्स हो गया। सो ए मैक्सिमम दैट इज द एक्सेलरेशन मैक्सिमम, maximum acceleration is equals to a omega square, because this whole sine function has value, maximum value +1. So the acceleration of harmonic oscillator is equals to a omega square. Okay, so this is all about the velocity and acceleration of simple harmonic oscillator. Okay, now phase relationship. Now what is the phase relationship between the displacement, velocity and acceleration? इन तीनों के बारे में हम पढ़ के आए। जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सेट की थी, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारे पास, ये जिसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 1, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स के कंसेप्ट से ये इक्वेशन आया था हमारे पास। इसका सॉल्यूशन हमने कहा, ये सॉल्यूशन देता है हमें कुछ इस तरह का। बहुत सारे और भी सॉल्यूशन के ऊपर हमने बात की थी, लेकिन जो मोस्ट यूजेबल और जिसको हम आगे भी यूज करेंगे, तो इस तरह का सॉल्यूशन ये इक्वेशन हमें देती है, इस तरह का सॉल्यूशन। और यहीं से हमने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर निकाला। फिर हमने इसी इक्वेशन से जो वेलोसिटी आई उसी से हमने एक्सेलरेशन के ऊपर बात की। तो अब जो तीनों इक्वेशंस, पहली इक्वेशन ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें देती है, दूसरी इक्वेशन ये जो वेलोसिटी हमें देती है, यहाँ कहीं ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर बी जिसे हम कह रहे हैं, और जो तीसरा इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन नंबर 10,
ये वाला इक्वेशन जो हमें एक्सेलरेशन देता है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे और फेज रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, सो व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिc oscillator? Okay, so velocity is given by a omega cos omega t plus phi. This can be written as a omega sin omega t plus phi plus pi by 2, which is equation number 11. Comparing equation number 10 and 11, जो इक्वेशन नंबर 10 है वो मुझे एक्सेलरेशन देता है, तो पहले हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये इक्वेशन मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। ओके, this is equation number 10 and look at this, remember this equation. Acceleration of simple harmonic oscillator is equals to a omega square sin omega t plus phi, or sin omega t plus phi plus pi. This is equation number 10, a omega square, this. So, and the equation gives me the velocity of simple harmonic oscillator is this. Velocity is a omega cos omega t plus phi, and we can write it as a omega sin omega t plus phi plus pi by 2, because sin pi by 2 plus theta is equals to cos theta. This is equation number 11. Now comparing equation number 10 and 11, we find that acceleration of a particle of a simple harmonic oscillator or a particle performing SHM leads the velocity by pi by 2 रेडियन इन फेज। कैसे? देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ साइन का जो एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई 2। ओके, और यहाँ जो साइन का एंगल है इस इक्वेशन नंबर 11 में वो है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई 2। अब इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट तो कीजिए, इन एंगल्स को। जो फेज है, क्योंकि हम केवल फेज के ऊपर बात करें, फेज रिलेशनशिप, ये फेज के ऊपर बात करें, हमने ओवरऑल डिस्कशन नहीं करना, केवल फेज के ऊपर डिस्कशन करना है। तो जो फेज होगा वो होगा जो एक्सेलरेशन का फेज है। एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है, एक्चुअली मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो है ये, चूंकि मैं इसको एक्सेलरेशन ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, ये वाला इक्वेशन है। और जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो है वेलोसिटी v इक्वल्स टू ए ओमेगा। एक्चुअली ये इक्वेशन था cos ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन मैंने इसको कह दिया है कि ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई 2, इस तरह मैंने इसको कह दिया। तो अब इनके केवल फेज के ऊपर हम बात करें तो इसका फेज ये है जो एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन है, और इसका फेज ये है। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है? तो लेट अस सब्ट्रैक्ट इट। इसको आप फाई 1 कहिए और इस पूरे फेज को आप फाई 2 कहिए। तो अगर आपको फेज डिफरेंस देखना है डेल्टा फाई, तो वो होगा फाई 1 माइनस फाई 2, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई 2, यानी ये वैल्यू फाई 1 की ये, और ये वैल्यू फाई 2 की। सो ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई 2, माइनस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी, फाइव से फाइव कैंसिल हुआ तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, विच रिजल्ट्स इन पाई बाई 2। तो एक्चुअली जो एक्सेलरेट, और ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया वो वेलोसिटी के फेज से एक्सेलरेशन के फेज को सब्ट्रैक्ट किया। तो एक्चुअली ये जो एडवांस फेज है ये वेलोसिटी के पास है। सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, चूंकि एक्सेलरेशन के पास प्लस पाई फेज है और इसके पास पाई बाई 2 फेज है, तो एक्सेलरेशन लीड करता है किसको? वेलोसिटी को। आगे जब हम फिगर को डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस इस बात का करेंगे, तो वहां भी आपको ये बात समझ में आएगा कि किस तरह से जो
एक्सेलरेशन है वो लीड करता है वेलोसिटी को. सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 10 and 11, we find the acceleration of a simple harmonic oscillator leads the velocity by pi by 2. leads the velocity by pi by 2. क्योंकि ये जो फेज था phi 1, इसमें से ही हमने phi 2 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर भी एक पॉजिटिव वैल्यू आई हमारे पास. इसका मतलब phi 1 लीडिंग द फेज phi 2, यानी ये और ये किसका फेज था? एक्सेलरेशन का. और ये किसका फेज था? वेलोसिटी का. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का जो फेज है वो वेलोसिटी के फेज से पाई बाई 2 अग्रगामी है, या लीड्स द फेज ऑफ वेलोसिटी बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, और यू कैन से इट एज 90 डिग्री. ओके, दिस पाई बाई 2 रेडियन इन फेज. अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है. Comparing equation 10 and 12, we find that acceleration of SHO leads the displacement by pi radian. Okay. अब जो एक्सीलरेशन, ये वाला इक्वेशन को हमने 12 कंसीडर किया है, जो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, जो एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसे जनरल सॉल्यूशन हम कहते आ रहे हैं, उसका इक्वेशन ये है. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 12 कह दिया. और 10 और 12 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. 10 और 12 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. तो आप देखिए, इक्वेशन नंबर 10 ये है हमारे पास, और इक्वेशन नंबर 12 ये है हमारे पास. इक्वेशन नंबर 12 ये है हमारे पास. तो फिर से हमें इसका फेज चेक करना पड़ेगा. देखिए, ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो ये है. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये है. और डिस्प्लेसमेंट का जो y का इक्वेशन है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अब और इसमें पाई भी है, एक्सेलरेशन वाले में इसमें पाई भी है. ये देखिए, इक्वेशन नंबर 10, दिस द एक्सेलरेशन इक्वेशन. सो पाई. तो इसके फेज को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं. तो आप सीधे वही फॉर्मूला है कि इसको phi 1 कंसीडर कीजिए, इसको phi 2 कंसीडर कीजिए, और अगर आपको फेज डिफरेंस देखना है तो डेल्टा फाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. डेल्टा फाई इक्वल्स टू phi 1 माइनस phi 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू phi 1 की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई, और phi 2 की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाई. और फिर से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई, और फिर माइनस साइन के अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ओमेगा टी माइनस फाई. ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, फाई से फाई कैंसिल, और हमारे पास आंसर आया फाई. और ये किसका फेज था? एक्सेलरेशन का. और ये किसका फेज था? डिस्प्लेसमेंट का. यानी एक्सेलरेशन लीड्स the displacement by the phase of pi radian or 180 degree. Pi radian or 180 degree. You can see it. Yes, this is the phi. This is the phase of acceleration. Say let us say it phi 1, and this is the phase of displacement. Let us say it phi 2. So when you calculate the phase difference between acceleration and displacement, so you can easily subtract phi 1 from phi 2 from phi 1, and value of phi 1. Look at here, omega t plus phi plus pi. So omega t plus phi plus pi minus phi 2 omega t plus phi. So when you multiply this minus sign into the bracket, so omega t plus phi plus pi minus omega t minus phi, because of this minus, these two quantity bracketed quantity will become minus. So minus omega t cancel with plus omega t, minus phi is cancelled with plus pi, and you see here the phase difference between acceleration and displacement, because here we subtract the phase of acceleration from the phase of displacement from the phase of acceleration. Actually we can get
from this mathematical description the positive phase value. That means the leading component is acceleration. So why we can write acceleration leads the displacement by the phase angle of pi radian, या फिर हम इसी बात को कह सकते हैं 180 डिग्री. Okay, so this. So 180 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है वो. और अगर तीसरी बात आप करना चाहें, यहाँ एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. ये फेज रिलेशन कैसा है? डिस्प्लेसमेंट और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, और जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो ये है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू. ये इक्वेशन है वेलोसिटी का और ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का. अब अगर इनमें दोनों में आपको फेज डिफरेंस देखना है तो क्या होगा? अब इसको आप φ1 कंसीडर कीजिए चूंकि ये फेज ज़्यादा है, और इसको आप फिर से φ2 कंसीडर कीजिए तो आप फिर से डेल्टा फाई निकाल सकते हैं यहाँ से. तो डेल्टा फाई जो होगा वो होगा φ1 माइनस φ2. अगेन φ1 की वैल्यू इस बार ये है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, और जो डिस्प्लेसमेंट का फेज है वो है ओमेगा टी प्लस फाइव. सो you can get omega t plus 5 plus pi by 2, and here is minus omega t plus 5 minus 5. Minus omega t is cancelled with plus omega t, minus 5 is cancelled with plus 5, and you are left with pi by 2. You are left with pi by 2. Hence, because this is the phase of velocity and this is the phase of displacement, and you still get a positive quantity, that means the velocity leads the displacement by the phase difference of pi by 2 radian, or you can say it as 90 degree. You can say it as 90 degree. This ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं. एक छोटी सी बात और ये है कि जब हम 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कहते हैं, 180 डिग्री का फेज, इसको एंटी फेज भी कहते हैं. एंटी फेज का मतलब ये है कि अगर साइनोसोडियल वेव को आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे. मान लीजिए ये आपके पास इस तरह का कोई साइनोसोडियल वेव है और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है. 180 डिग्री फेज शिफ्ट. तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने का मतलब ये है कि जो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो इसको एंटी फेज की कंडीशन भी कहते हैं. इन दोनों में जो इन वेव फॉर्म्स में जो डिफरेंस है फेज का, वो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री. 180 डिग्री, या फिर हम इसको पाई रेडियन कह सकते हैं. पाई रेडियन कह सकते हैं. तो इस तरह से एंटी फेज, यानी इस तरफ पहले इसकी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल थी और यहाँ इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है. जिस तरफ इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है उसी समय पर इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो ये दोनों जो वेव फॉर्म है ये एंटी फेज वेव फॉर्म्स आप इन्हें कह सकते हैं. एंटी फेज वेव फॉर्म्स आप इन्हें कह सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो फेज रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे थे. यहाँ ये फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इन तीनों में फिर से एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो इस वर्क को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन, थैंक यू and meet you into the next one.